ठीक है जी। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। तो उससे पहले ये क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एनवायरनमेंट डिस्प्ले किया गया है, जिसके अंदर क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक लेयर्ड आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड होता है। यानी कि जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो, जो इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द हार्डवेयर विच परफॉर्म्स द एक्चुअल फंक्शंस ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है जी। अब हार्डवेयर के साथ कौन डील करता है? दैट डील्स द सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दैट इंटरेक्ट्स विद द हार्डवेयर पार्ट। एंड ऑन द हायर लेयर देयर इज application softwares. Application softwares are the programs which are built on the system software to get the functionality of your computer system. जैसे कि आपके वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट होते हैं, ये एक application programs होते हैं which are installed in your computer system to perform different kind of functions. ठीक है जी। they interact these application programs interact with the system software, not with the hardware. They will interact with system software and system software in turn will interact with the hardware and perform the desired task. And the highermost layer on which user works, yani ki it is the actual user who uses your computer system. यानी कि user will interact with application software programs, application software programs will interact with system softwares, and system software will make the hardware function according to the request made by the user and give the desired response or output. ठीक है जी। This is what we call is the layered architecture of operating system. ठीक है जी। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द लेयर्ड आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन, तो इस तरह से ये डायग्राम बनाओगे आप, उसको एक्सप्लेन करोगे। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। तो the operating system provides such kind of environment where the user gets its various services and functionalities from the computer system. ठीक है जी। So these are the various services that are governed by the operating system. These are offered by the operating system to the user or the system. The first one is program execution. Second one is error handling, then job set sequencing, then input output operations, then interrupt handling, then file system manipulation, then scheduling, then resource allocation, then accounting of computer resources, and finally protection. These are the major services that are provided by the operating system. The first one is program execution. What is program execution? When you want to perform some particular kind of task or function from your system, कोई भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको मान लो 2+2=4 ही करना है, तो दैट इज आल्सो एन ऑपरेशन। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। वो प्रोग्राम क्या डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि हाउ टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ नंबर्स। ठीक है जी। वो programs are built into the system, and these programs, whatever the program is there in your computer system, चाहे वो 2+2=4 का है, multiplication, addition, any mathematical operation, any logical operation, any other kind of complex operations, whatever the functioning is there in your computer system, everything is through programs. ठीक है जी। everything is done through programs. ये तुम लोग मारती हो ना, इसलिए। तो प्रोग्राम्स, वट एवर द प्रोग्राम इज देयर इन योर कंप्यूटर सिस्टम, जो भी फंक्शनिंग आपको परफॉर्म करवानी है, ऑल द प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा क्या होता है, जो भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट होगा सिस्टम के अंदर, तो इट मस्ट लीड टू द एंड,
यानी कि प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, वो सिस्टम के अंदर रन होने लग रहा है, उसके बाद वो एंड भी होना जरूरी है आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आइदर नॉर्मली, अगर नॉर्मली नहीं होता तो फोर्सफुली इट्स मस्ट बी एंडेड, ताकि जो दूसरे प्रोग्राम से दे कैन आल्सो बी एग्जीक्यूटेड। दूसरा है एरर हैंडलिंग। इफ एनी काइंड ऑफ एरर अराइजेज इन द सिस्टम, तो उस एरर को भी हैंडल करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और उस एरर को हैंडल करने का मतलब ये है कि टू आइडेंटिफाई एनी पर्टिकुलर एरर, उसको एनालाइज करना एंड देन टू करेक्ट इट, दैट इज फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन टू करेक्शन, ऑल द functioning is done by the operating system to provide a smooth functioning in your computer system। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल पावर फेलियर इन द सीपीयू और मेमोरी, सिस्टम चल रहा है आपका, एकदम से पावर फेलियर हो जाए, एकदम से सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है जी। तो वहां पे क्या हो सकता है? देयर इज चांसेस ऑफ डिसरप्शन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आपकी कुछ फाइल्स करप्ट हो सकती हैं, आपके कुछ प्रोग्राम्स जो क्या हो सकते हैं, वेस्ट हो सकते हैं, गार्बेज हो सकते हैं। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? वो एरर आ गया तो उसको हैंडल कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल करके, उसको रेक्टिफाई करके सिस्टम को दोबारा से क्या करवाएगा? नॉर्मली रन करवाएगा सिस्टम को। दूसरा कहते हैं पेरिटी एरर ऑन टेप। अगर आपका कोई स्टोरेज मीडिया है, चाहे कोई टेप है, जो हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, तो उसके अंदर अगर कोई एरर आ जाता है आपका, तो वहां पे भी उसको भी कौन हैंडल करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रिंटर आउट ऑफ पेपर, प्रिंटर आउट ऑफ पेपर अगर चला जाए, पेपर नहीं है प्रिंटर के अंदर, तो क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल करेगा, मैनेज करेगा कि जैसे ही आप दोबारा पेपर लगा के और उस पे ओके करोगे, तो वहीं से उसको क्या कर देगा? प्रिंटिंग को कंटिन्यू कर देगा। कोई अरिथमेटिक ओवरफ्लो एरर आ गया, कोई इलीगल मेमोरी लोकेशन एक्सेस एरर आ गया, यानी कि दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एरर्स दैट मे अराइज इन योर कंप्यूटर सिस्टम। तो उनको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? हैंडल करेगा, मैनेज करेगा। दूसरा जॉब सीक्वेंसिंग। जॉब सीक्वेंसिंग, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मल्टीटास्किंग की, मल्टी प्रोग्रामिंग की, जिसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे जॉब्स होते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ जॉब्स। तो अब उन जॉब्स को हमें क्या करना पड़ेगा? देयर मस्ट बी ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, एन ऑर्डर थ्रू विच द जॉब्स विल बी एग्जीक्यूटेड इन द सिस्टम। 10 जॉब एक साथ आ गए सिस्टम के अंदर, तो भाई उनको कैसे डिटरमाइन होगा कि कौन से जॉब को पहले एग्जीक्यूट करना है, कौन से को बाद में एग्जीक्यूट करना है? तो उसके लिए जॉब सीक्वेंसिंग is must in the system to identify which job will be executed first and which job will be executed next। ठीक है जी। तो that is also done by the operating system। जैसे कि एग्जांपल इसके अंदर प्रोग्राम में दिखाया हुआ है डॉलर जॉब, उसके बाद कंपाइल फोर्ट्रान प्रोग्राम लोड एंड रन डेटा एंड एंड ऑफ आपके जो जॉब है वो आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या बता रहा है? ये जो जॉब प्रोग्राम इसके अंदर दिखाया है, तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन होगा वो मान लो फोर्ट्रान है, वो एक इंटरप्रेटर के द्वारा क्या होती है? एग्जीक्यूट होती है। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, पहले फर्स्ट लाइन को, फिर सेकंड लाइन को, फिर थर्ड लाइन को, फिर फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स्थ को, यानी कि लाइन बाय लाइन क्या होगा? एग्जीक्यूशन होगा। तो एक सीक्वेंस स्टेब्लिश हो गया, चाहे लाइन बाय लाइन कर रहे हो आप, चाहे कोई अदर मेथड यूज कर रहे हो। वो अदर मेथड जो जॉब सीक्वेंसिंग, जॉब शेड्यूलिंग जो है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जिसकी डिफरेंट एल्गोरिथम्स होती है कि किस किस तरह से हम जॉब्स को क्या कर सकते हैं? सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, उनकी शेड्यूलिंग कर सकते हैं। दूसरा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। अगर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लग रहा है, तो कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको एक इनपुट भी चाहिए होती है, एक आउटपुट भी चाहिए होती है। तो जो भी इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस होंगे किसी भी प्रोग्राम के अंदर, दोज आर आल्सो मैनेज्ड एंड हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि अगर किसी प्रोग्राम को किसी इनपुट की जरूरत पड़ेगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वो इनपुट प्रोवाइड करवाएगा। अगर कोई आउटपुट जनरेट करनी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो मैनेज करेगा उस आउटपुट को कि यूजर को किस तरह से उसको डिस्प्ले करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बताया रिवाइंड टेप ड्राइव, अगर किसी टेप ड्राइव को रिवाइंड करना है, कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सर वॉइस कट रही है, कोई रिकॉर्डिंग है उसको स्किप करना है, ठीक है, तो ये वेरियस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, इनको कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? अटेंडेंस ले लो सर अब। हाँ आवाज आ रही सर, है ना? हाँ ठीक है। अभी इस ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज कंप्लीट करके ही लेट अटेंडेंस रिस्पॉन्स आ रहा है सर,
लेट रिस्पॉन्स आ रहा है सर, वो इसका थोड़ा सा। कोई बात नहीं। इंटरप्ट हैंडलिंग की बात कर रहे हैं हम अभी तक कितनी देर से पढ़ने लग रहे थे कि इंटरप्ट ड्रिवन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, एक जॉब के बाद अगर दूसरी जॉब को एग्जीक्यूट करना है, अगर कोई हाई प्रायोरिटी जॉब आ जाता है तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, इंटरप्ट जनरेट करना पड़ता है। वो इंटरप्ट क्या करता है, वो जो आपके प्रोसेसिंग यूनिट है उसको आइडेंटिफाई करेगा कि दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज ऑफ हाई प्रायोरिटी, और आप जो करंटली जो एग्जीक्यूट कर रहे हो प्रोसेस, उसको होल्ड करके और पहले इस प्रोसेस को क्या करो, एग्जीक्यूट करो। तो वो होते हैं इंटरप्ट। तो उन इंटरप्ट को भी कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमने पहले ही पढ़े थे, इंटरप्ट आर टू ऑफ टू टाइप्स, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और दूसरा हार्डवेयर इंटरप्ट। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो जनरेट होते हैं, और हार्डवेयर इंटरप्ट जो हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू इंटरप्ट होते हैं। वैसे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं, दीज आर जनरेटेड विद इन द सीपीयू, जो आपके प्रोसेसिंग यूनिट है उसके अंदर थ्रू सॉफ्टवेयर जनरेट होते हैं, जैसे सिस्टम कॉल्स कॉल्स हमने बताए थे। दीज आर आल्सो नोन एज सुपरवाइजर कॉल्स, एसवीसीज। ठीक है जी। जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, उस प्रोसेस को कोई रिसोर्स चाहिए तो वो इंटरप्ट जनरेट करके उस रिसोर्स को अलोकेट करवाती है सिस्टम से। ठीक है जी। दूसरा कहते हैं ट्रैप्स। ट्रैप क्या होता है, अगर कोई एरर आ जाता है किसी प्रोग्राम के अंदर, तो एरर्स को मैनेज करने के लिए क्या करता है, ट्रैप जनरेट होता है। वो ट्रैप आइडेंटिफाई करता है कि सिस्टम के अंदर एरर आ गया, और सीपीयू को उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, मैनेज करवाता है। अगर हम हार्डवेयर इंटरप्ट की बात करें तो जो दैट इज जनरेटेड बाय द हार्डवेयर डिवाइसेज। तो जो भी अदर जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उनको अगर कोई इंटरप्ट जनरेट करना, कोई सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो इंटरप्ट सेंड करके सीपीयू के पास, और फिर क्या करते हैं वो अपना ऑपरेशन जो भी टास्क है वो परफॉर्म करते हैं। थर्ड वन जो कैटेगरी होती है वो होती है टाइमर इंटरप्ट। ये जो टाइमर को हमने अभी पढ़ा था, टाइमर क्या करता है, आफ्टर द लिमिट इज रीच्ड, तो वो क्या करेगा, इंटरप्ट जनरेट करेगा सीपीयू के पास कि भाई इस प्रोसेस का टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका, और इसका एग्जीक्यूशन आप क्या कर दो, टर्मिनेट करके नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट कीजिए। तो वो होता है। उसके बाद फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। जितने भी फाइल सिस्टम को जो मैनिपुलेशन होता है, जो भी फाइल के, मान लो आप एक वर्ड फाइल है उसके को क्रिएट करना है, उसको डिलीट करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है, रीड करना है, राइट करना है, उसको चेंजेस करने हैं, जो भी दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस जो एक फाइल के ऊपर परफॉर्म होते हैं। ठीक है जी। वो होते हैं सारे फाइल मैनिपुलेशन। ठीक है जी। तो वो सब भी कौन हैंडल करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या है कि भाई सिस्टम को डिसाइड करना पड़ेगा कि सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, तो किस प्रोसेस को कब एग्जीक्यूट करवाना है, किस प्रोसेस को किस ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, किस तरह से प्रोसेसेस को होल्ड करना है, किस तरह से उनको सिस्टम के अंदर फीड करवाना है। ठीक है जी। वो सारी शेड्यूलिंग कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है जी। ठीक है। दूसरा रिसोर्स अलोकेशन। अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होने लग रही है, ठीक है जी, और उसको कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो रिसोर्सेज कौन अलोकेट करवाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर दो प्रोसेसेस, तीन प्रोसेसेस, 10 प्रोसेसेस, पैरेलल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होने लग रही है, तो उनके बीच में रिसोर्सेज को सफल करवाना है, एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के बीच में। जब भी जिस प्रोसेस को जो रिसोर्स चाहिए वो उसको अलोकेट करवा के और दूसरी प्रोसेस से फ्री करवाना, ये सारे काम क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। जैसे कंपाइलर है, टेप यूनिट है, मेमोरी है। दूसरा अकाउंटिंग ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। अकाउंटिंग ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि भाई जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उनको क्या करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखेगा कि सिस्टम के अंदर इतने रिसोर्सेज हैं और उसके अंदर इतनी प्रोसेसेस रन हो रही है, और कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस को क्या करना है, अलोकेट करना है, कौन सा रिसोर्स अभी फ्री हो गया, कौन सा रिसोर्स अभी किस प्रोसेस के अंदर यूज में है। वो मतलब पूरा ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे लॉग्स होते हैं आपके, आप कोई भी फोन के अंदर आप कॉल्स करते हो, तो जो कॉलिंग रिकॉर्ड होता है आपका, रिसीव्ड कॉल्स का, मिस्ड कॉल का, डायल्ड कॉल का, पूरा रिकॉर्ड, एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। वैसे ही जो कंप्यूटर के अंदर रिसोर्सेज जो यूज हो रहे हैं, उन सब का क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखता है कि ये रिसोर्सेज है, ये इस प्रोसेस के थ्रू यूज होने लग रहा है, ये फ्री है अभी, ये अभी इस प्रोसेस को अलोकेट होना है। वो सारा कौन मैनेज करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट वन है आपका प्रोटेक्शन। तो हमने अभी पढ़ा था कि भाई जो अनऑथराइज्ड जो एक्सेस है, या जो आपके जो यूसेज लिमिट आपको स्टेब्लिश करनी है रिसोर्सेज की, आपके सिस्टम के अंदर प्रोसेसेस की, कि किस प्रोसेस को कौन यूजर एक्सेस कर सकता है, किस रिसोर्स को कौन सी प्रोसेस एक्सेस कर सकती है, कितनी देर तक कर सकती है,
और कौन से क्या मैनेज करना है रिसोर्सेज को किस तरीके से। वो प्रोटेक्शन सिस्टम के रिसोर्सेज को कौन यूज कर सकता है, अनऑथराइज एक्सेस को स्टॉप करने के लिए, सिस्टम को सिक्योर बनाने के लिए जितने भी फंक्शंस टास्क परफॉर्म होते हैं, दिस आर ऑल गवर्न्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। These are the different operating system services that are governed by the operating system. ये मेजर सर्विसेज हैं, इसके अलावा और बहुत सारी सर्विसेज होती है, लेकिन जो मेजर जो सर्विसेज हैं, दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी जो जितने भी टास्क परफॉर्म होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, वो सारे इन्हीं कैटेगरीज के अंदर आ जाते हैं मोस्टली। ठीक है, दीज आर वेरियस काइंड ऑफ सर्विसेज। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। एनीवन? प्रोटेक्शन दोबारा से बताना। हाँ जी, तो प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है, क्योंकि प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही है सिस्टम के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है जी, तो उसकी रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन इंश्योर करना, और जो यूजर जो भी है, मान लो मल्टी यूजर इन्वायरमेंट है, एक यूजर किस प्रोसेस को यूज एक्सेस कर सकता है, किसको नहीं कर सकता। अगर जनरल बात करें तो मान लो जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर अकाउंट्स से रिलेटेड जो भी प्रोसेसेस होंगी, जो भी फाइल्स होंगी, उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। आपको मैनेजमेंट वाले जो जो प्रोसेसेस हैं, उसको सिर्फ मैनेजमेंट पर्सनल होते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। आपके अगर कॉलेज की बात करें तो लाइब्रेरी का सेक्शन है, जो इंफॉर्मेशन का सेक्शन है, उसको इंफॉर्मेशन वाले एक्सेस कर सकते हैं। एडमिशन का जो डेटा है या जो प्रोसेसेस है, उसको एडमिशन से रिलेटेड जो पर्सनल है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कि भाई एडमिशन वाले डेटा को अकाउंट वाले ना एक्सेस कर सके, अकाउंट वाले डाटा को इंफॉर्मेशन वाले ना एक्सेस कर सके, इंफॉर्मेशन वाले डाटा को मैनेजमेंट वाले ना एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो उसको एक बाइफरकेट करने के लिए, सिस्टम को स्मूथ करने के लिए क्या करते हैं हम, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं, ताकि जो प्रोसेसेस हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे, और जो इंटेंडेड यूजर है जिस प्रोसेस का, जिस रिसोर्स का, वही उसको यूज कर पाए। ठीक है जी, वो होती है प्रोटेक्शन इन योर कंप्यूटर सिस्टम। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? और किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। एनीवन एल्स? ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।